Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. ओके बच्चा बाटी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या क्या हैं? जैसे क्विक रिकैप क्या क्या था भाई साहब, बताइए बताइए फटाक से बताइए. बेसिक प्रॉपर्टीज, हाँ, एडिटिविटी, ओके, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन, ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, ओके. सो जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Basic properties of electric charge, we have seen that there are two types of charges, namely positive and negative, and their effects tend to cancel each other. ये इनके effects जो होते हैं एक दूसरे को cancel करते हैं. If the sizes of the charge bodies are very small as compared to the distances between them, we treat them as point charges. देखो, if the sizes of the charge bodies, ठीक है, मतलब कैसा है, देखो, अगर समझ लो एक are very small as compared to the distances between them. समझ लो यहाँ पे एक charge body है और यहाँ पे एक charge body है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r. ये जो डिस्टेंस r है, इसके लेट्स से यहाँ पे एक रेडियस कैपिटल R है, यहाँ पे r डैश है, ये बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईदर r, और r इज वेरी हाई एज कंपेयर टू इवन r डैश. ठीक है, तो अपन इसको क्या, देखो समझ में आ रहा है, अगर दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है, इट इज फार मोर देन द साइजेस ऑफ दीज बॉडीज, विच मीन्स दैट द डिस्टेंस r इज मोर देन r और वेरी मच मोर देन r डैश. समझ में आ रही है? तो अपन इसको पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं. दीज आर पॉइंट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. क्लियर है, समझ में आ रहा है? चार्जेस के हिसाब से, ये q है, ये q डैश है, जो भी है, चार्जेस के हिसाब से आप पॉइंट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं. ठीक है, so if the sizes of the charge bodies are very small as compared to the distances between them, we treat them as point charges. तो इनको अपन क्या बोलेंगे? These are basically point charges. ठीक है, all the charge content of the body is assumed to be concentrated at one point in space. तो सारा चार्ज जो है तो एक पॉइंट पे concentrated रहता है. ठीक है, all the charge content of the body is assumed to be concentrated at one point in space. Okay, let's look forward people. Additivity of charges. ठीक है, तो मतलब if a system contains 2 point charges Q1 and Q2, the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2. आप भाई साहब Q1 और Q2 को ऐड करेंगे. एक मिनट, ठीक है. इफ अ सिस्टम कंटेन्स 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, एक सिस्टम में दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2, that is charges, and up like real numbers or their scalars like the mass of the body. तो मतलब हम चार्जेस को ऐड करेंगे Q1 and Q2. ठीक है, ओके ओके. इफ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस, लेट्स से Q1 Q2 Q3, then the total charge of the system is how much? Q is equal to Q1 plus QL. अभी ये अपने अपने साइंस के साथ आएंगे. समझ में आ रहा है ये भाई साहब? These will come along with their signs. Okay. Charge has magnitude but no direction similar to mass. चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, ठीक है.
similar to the mass. Okay, okay. However, there is one difference between mass and charge. Hey, mass और charge में क्या difference है नंदिनी? मास के चार्ज. ओके, हाँ. अच्छा, मास चार्ज के बिना रह सकता है, चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता. ओके, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? चार्ज और मास में मोहब्बत है, मतलब एक तरफा मोहब्बत है, तो वन साइडेड लव है. क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? मास चार्ज के बिना रह सकता, भाग यहां से. और चार्ज बोला कि नहीं नहीं नहीं. हाँ, तो चार्ज देखो क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन है ना. इलेक्ट्रॉन है अगर, तो वो अपने चार्ज के साथ तो आएगा ही, लेकिन क्या वो अपने मास के साथ भी आएगा? यस भाई, आएगा ही. और इसका मास कितना है? 9 × 10⁻³ kg है. बस इतना ही है. समझ में आ रहा है? किसी न्यूट्रल बॉडी में चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास है. समझ में आ रहा है? किसी न्यूट्रल बॉडी में चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास है. लेकिन अगर किसी चार्ज को अपन देखेंगे, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, उसके साथ साथ भाई साहब दहेज में ये भी आएगा ना, उसका मास भी तो आएगा. ठीक है, जो भी उसका मास हो. ठीक है, ओके, दैट इज व्हाट इट मींस. और दूसरा डिफरेंस क्या है आज? हाँ, चार्ज को स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास को फर्क पड़ता है. आपका जो मूविंग मास होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी? रेस्ट मास अपॉन 1 - v²/c². ठीक है, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए ही एप्लीकेबल है, बड़े बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बड़े बॉडीज का जो वेलोसिटी है वो c के करीब भी नहीं है. ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब. ओके ओके, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव. तीसरा डिफरेंस हो गया क्या भाई साहब? आपका मास हमेशा पॉजिटिव होता है. चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. किसी भी बॉडी का मास नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, ओके. प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम. फॉर एग्जांपल, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस, तो मतलब 5 चार्जेस हैं ये. ठीक है, इन सम आर्बिट्री यूनिट इज बेसिकली 15 इन द सेम यूनिट. ठीक है, ओके ओके ओके. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने देखा भाई साहब, चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, मतलब 1.6 ne. q इज इक्वल टू ne. ये n की वैल्यू 1 2 3 4 ये होगा. ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, experimentally it has been established that all free charges are integral multiples of a basic unit of charge denoted by e. Thus charge on a body is always given by q is equal to plus minus ne. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? हम यहां तक हमने भाई साहब पढ़ा हुआ है एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन. ठीक है, एंड कंजर्वेशन. चलिए भाई साहब, where n is any integer which can be positive or negative. This is basic unit of charge is the charge that an electron or a proton it carries. ठीक है, by convention charge on an electron is taken to be negative. Therefore charges on an electron is written as -e and that on a proton is written as +e. Simple 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 भाई साहब. The fact that electric charge is always an integral multiple of e is termed as, इसी को हम बोलते हैं भाई साहब quantization of charge. There are a large number of situations in physics where a certain physical quantities are quantized होते हैं भाई साहब. ठीक है, okay. The quantization of charge was first suggested by the experimental laws of electrolysis discovered by English experimentalist Faraday. इन्होंने पहले सजेस्ट किया था. और एक और नाम जो जुड़ता है इस एक्सपेरिमेंट के साथ, उनका नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में भी ये प्रूव हुआ था. ठीक है, और फैराडे ने भी ये भाई साहब इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन एंड फैराडे वेर द वंस हु सजेस्टेड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये सब हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कभी कभी नीट में ऐसे टेढ़े सवाल आ जाते हैं. Who named the scientists who suggested the quantization of charge? तो Millikan and Faraday were the people who actually suggested the quantization of charge. ठीक है, okay. In the international system there is SI. The charge का यूनिट क्या है भाई साहब? आपका कूलम. It is denoted by capital C. जब भी आपका भाई साहब किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट होगा वो हमेशा कैपिटल में ही होगा. ठीक है, जैसे आपका सेंटीमीटर कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, मीटर कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, लेकिन जैसे आप न्यूटन पे आते हैं कैपिटल लेटर हो जाता है, जूल्स पे आते हैं कैपिटल लेटर हो जाता है, कूलम पे आएंगे तो कूलम पे आ जाएगा. आज अपन कूलम्स लॉ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे. तो कूलम्स लॉ पे कूलम के नाम पे ये आपका चार्ज का कैपिटल सी आता है. ठीक है, सो व्हेनेवर यू सी अ कैपिटल डिनोशन ऑफ अ यूनिट, it definitely correlates to the person who has made significant contribution to science in that particular subject or area. ठीक है, a coulomb is defined as the unit in terms of the electric current. ठीक है,
In terms of this definition, 1 coulomb is the charge flowing through a wire, that is 1 ampere. 1 coulomb in this system, the value of the basic unit of the charge is, देखो चार्ज, देखो करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q by T. समझम. तो Q क्या हो जाएगा बोलो, I into T. ठीक है, तो आपका 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. समझ में आतम पीपलम. सो अगर आपको कूलम को डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ करंट, दैट 1 कूलम इज डिफाइंड एज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन इट, देखिए एक कंडक्टर से, व्हेन थ्रू अ कंडक्टर 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज 1 कूलम. ठीक है, क्लियर है. सो इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन, 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर. It is 1 ampere. In this system, the value of the basic unit of the charge is, ठीक है, E आपका E कितना है, 1.602 into 10 raised to minus 19 coulombs. ठीक है, this is a universal constant. ठीक है, okay. Thus there are about 6 into 10 raised to 18 electrons in a charge. एक चार्ज में देखो आपका भाई साहब होता क्या है, Q is equal to NE होता है, सॉरी Q is equal to NE होता है. तो उस दिन हमने देखो यहाँ पे किया, N is equal to क्या हो जाएगा, Q by E. ठीक है, Q 1 कूलम हो गया और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो, 6 इंटू 10 रेज़ टू 18. मतलब आपके एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इंटू 10 रेज़ टू 18. सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम इनकाउंटर्ड एंड हेंस वी विल यूज स्मॉलर यूनिट्स. ज्यादा करके देखो हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो ठहरे हुए चार्जेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, और ठहरे हुए चार्जेस किस में होते हैं, इंसुलेटर में होते हैं, क्योंकि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उनमें तो चार्जेस ठहर ही नहीं सकते, दे विल बी ऑन अ कांस्टेंट फ्लोइंग मोड. अभी चार्जेस जब ठहरने लगते हैं ना तो उनका भाई साहब एक मैग्नीट्यूड होता है, उससे ज़्यादा ठहराने की कोशिश करोगे तो भाई साहब आग लग जाएगी. जैसे समझो यहाँ पे ये एक वुड है और मैं यहाँ पे करंट पास कर रहा हूँ. ठीक है, करंट पास कर रहा हूँ बैटरी से, अगर मैंने 25,000 वोल्ट करंट पास कर दिया तो जल जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा एंड दैट इज गोइंग टू कॉज अ बर्नआउट. ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज्यादा करके आप देखोगे कि ये माइक्रो कूलम से हम डील करते हैं, वी डू नॉट डील विथ ह्यूज चार्जेस. ठीक है, क्योंकि ह्यूज चार्जेस आपके इंसुलेटर में अगर आ जाएंगे तो भाई साहब इंसुलेटर जल जाएगा. समझ में आ रहा है ये. ठीक है, आर वी क्लियर. सो वी बेसिकली यूज स्मॉलर चार्जेस, स्मॉलर यूनिट्स, माइक्रो कूलम हो गया, ठीक है, मिली कूलम हो गया. ठीक है, दीज आर द वंस दैट वी यूज. माइक्रो मींस 10 रेज़ टू माइनस 6, मिली मींस 10 रेज़ टू माइनस 3. ठीक है, ओके. If the protons and electrons are the only basic charges in the universe, all the observable charges have to be integral multiples of electrons. Thus, if a body contains n1 electrons and n2 protons, तो आपने देखा उस दिन भाई साहब इसका मतलब कितना चार्ज हो जाएगा इसको, n2 minus n1 into E. This is something that we have already seen. Since n1 and n2 are integers, their difference is also an integer. ठीक है. Thus, the charge on any body is always an integral multiple of E and can be increased also in steps of E. The step E is, however, very small because of the macroscopic level we deal with the charges of a few microcoulombs. ठीक है. यार यहाँ पे काम की चीज देख रहा हूँ मैं. ये सब तो अपन कर चुके हैं, कंजर्वेशन. अच्छा चलिए इसमें आते हैं, देखो. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में देख रहे हैं हम, देखो. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस चार्ज इज कंजर्व. जैसे आप देखोगे यहाँ पे यूरेनियम है ये. ठीक है, इसको आपने न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया. न्यूट्रॉन क्या होता है, अनचार्ज पार्टिकल. ठीक है, यहाँ पे कितना है, 235 इसका एटॉमिक मास है, 92 इसका एटॉमिक नंबर है. मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स हो गए, 92. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 92. और कितने भाई साहब आपके न्यूट्रॉन्स हो गए, 235 माइनस 92. जैसे आपने बॉम्बार्ड किया इसको, ये दो में स्प्लिट हो रहा है. इट इज बेसिकली स्प्लिटिंग इनटू टू, ज़ीनॉन एंड सोडियम. जहां पे भाई साहब इसका 54, इसका 38. 54 प्लस 38 करोगे कितना आ जाएगा, 92. ठीक है, और यहाँ पे देखो 235 प्लस 1 236 बढ़ गया, तो 140 प्लस 94 करोगे तो 236 आ जाएगा आपका. ठीक है, क्लियर है. ओके, 140 प्लस 94, 140 प्लस 94 ये हो गया कितना भाई साहब, 4, 9 प्लस 4 13, 234. और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन बच रहे, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना है 236 का, तो 2 न्यूट्रॉन और बच जाएगा. यही 2 न्यूट्रॉन अगले वाले यूरेनियम को एक्सप्लोड करेंगे और ऐसा चेन रिएक्शन चलता रहेगा. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये. ओके, सो ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया. हियर इनिशियल चार्ज बोलो कितना है, 92 प्लस 0 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 92E. ठीक है, एंड फाइनल चार्ज कितना हो गया, देखो 92E.
ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है। इवन इन रेडियो एक्टिव रिएक्शंस द चार्जेस आर कंजर्व्ड, ठीक है। चलिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट और बिकम्स जीरो। रिमेन्स कांस्टेंट भाई साहब, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट बिकम्स पॉजिटिव एज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड द सिल्क बिकम्स नेगेटिव बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ गेनिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, सो इट बिकम्स नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रिफिकेशन, अभी हम पढ़ेंगे कि भाई साहब ये जो चार्जेस हैं ये क्या हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। क्या क्या हो जाएंगे बोलो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस में क्या क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ओके, कंडक्टर्स, देन वी हैव बेसिकली इंसुलेटर्स एंड देन वी हैव सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, फटाफट भाई साहब, जो लोग कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस में फ्री फ्लो रहेगा। इंसुलेटर्स में क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में भाई साहब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे होने लगेगा, ठीक है, तो ये एक होता है सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो लेट्स क्विकली सी कंडक्टर होता क्या है भाई साहब। अ कंडक्टर इज अ मटेरियल थ्रू विच चार्जेस फ्लो वेरी इजीली। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, मोस्ट मेटल्स गुड कंडक्टर्स, ठीक है, ज्यादा करके आपके मेटल्स जो है तो आपके गुड कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। ओके, insulators bad conductors of electricity, they would not allow free flow of charges. Insulators are material through which charges flows poorly or not at all. इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, देखो, सिल्क एंड कॉटन थ्रेड्स, रबर एंड मेनी प्लास्टिक्स आर गुड इंसुलेटर्स। डू वी नीड इंसुलेटर्स, यस वी नीड, ठीक है। अगर भाई साहब कोई लाइव वायर है, उसको आपने भाई साहब एक मतलब आप इसको छू सकते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे भाई साहब इंसुलेटर है, इसके अंदर भाई साहब ऐसा, अगर इसको हटा दिया जाए और इसको छूने जाएंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। सो क्या मतलब ये इंसुलेटर आपका क्या कर रहा है, दिस इज बेसिकली प्रिवेंटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। आपके जितने भी प्लास्टिक, जितने भी स्विचेस हैं, जितने भी आपके वायर्स हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है। तो वी नीड बोथ कंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर्स। एक फंडामेंटल सा थियरम समझ लीजिए कि भाई साहब ये कंडक्शन होता कैसे, ठीक है। तो हर एक उसमें ना बैंड्स होते हैं, तो आपके भाई साहब यहाँ पे देखो ये बैंड है एक, ठीक है, तो आपका ये है लेट्स से वैलेंस, ये आपका है भाई साहब कंडक्शन बैंड, और ये है आपका वैलेंसी बैंड, ठीक है, ये आपका वैलेंसी बैंड, ठीक है। आपका जो मेटल्स होते हैं या जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, मेटल्स और बेसिकली कंडक्टर्स, इसमें क्या होता है, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग होती है। वैलेंसी बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भाई साहब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पटाख से कंडक्शन बैंड में आराम से चले जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई साहब कंडक्टर्स में बहुत बड़ी तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। व्हाई डू वी से दैट देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, बिकॉज इजीली दीज वैलेंसी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे वेरी इजीली, ठीक है। ओके, नाउ वी कम टू बेसिकली नॉन मेटल्स और लेट्स से इंसुलेटर्स, ठीक है, नॉन मेटल्स और लेट्स से इंसुलेटर्स। इसमें क्या होता है, देखो ये कंडक्शन बैंड है इनका, ठीक है, इनके पास भी कंडक्शन बैंड रहता है, और ये भाई साहब है इनका वैलेंसी बैंड। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एनर्जी का डिफरेंस है, और इसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, फॉरबिडन एनर्जी गैप। दीज आर थिंग्स विच आर गोइंग टू स्टडी इन सेमीकंडक्टर्स इन डिटेल, बट फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं इंसुलेटर्स कंडक्शन कर रहे हैं। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे जाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए, और जनरली वो हम कवर नहीं कर सकते, जिसके वजह से द इलेक्ट्रॉन्स नेवर बिकम फ्री फॉर मूवमेंट, एंड जिसकी वजह से दीज आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया इंसुलेटर्स, ठीक है। नाउ वी कम टू सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। नाउ सेमीकंडक्टर्स मतलब क्या हो जाएंगे भाई साहब, कंडक्शन बैंड ये है और वैलेंसी बैंड इसके आसपास ही रहेगा, ठीक है भाई साहब, वैलेंसी बैंड इसके आसपास ही रहेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है थोड़ा इनको एनर्जी देंगे तो ये टपक जाएंगे कंडक्शन बैंड में। सो सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स
to which if you give a slight amount of energy they will start conducting electricity. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ये फंडामेंटल थ्योरम है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का. ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑफ पीपल? तो सिल्क एंड कॉटन थ्रेड्स, रबर एंड मेनी प्लास्टिक्स आर गुड इंसुलेटर्स. ये आपके भाई साहब इंसुलेटर्स हो गए, ये चार्ज इंसुलेटर हो गया. सेमीकंडक्टर्स आर व्हाट? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाई इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो आपके क्या हो जाएंगे? जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, ये सब भाई साहब आपके हो जाएंगे सेमीकंडक्टर्स. आप इसको बहुत विस्तारित रूप से सेमीकंडक्टर्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ओके ओके ओके. इलेक्ट्रिफिकेशन, अभी हम देखेंगे एक बॉडी से छूमंतर चार्ज दूसरे बॉडी में कैसे जाता है. ठीक है, हाउ डज इट गो? बेसिकली द मेथड ऑफ इंपार्टिंग चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन. ठीक है, ओके. मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भाई साहब क्या हो जाएगा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. तो पहला तो भाई साहब आपने देख लिया कि अगर ग्लास रॉड को आप वूल से रब करते हैं, या एबेनाइट रॉड को अगर आप वूल से रब करते हैं, ग्लास रॉड को आप सिल्क से रब करते हैं, इन सब फ्रिक्शन से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सो दैट बेसिकली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा मेथड है भाई साहब चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, द बॉडीज आर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर. नाउ व्हेन यू बेसिकली रब अगेंस्ट ईच अदर, यहां पे होता क्या है? दोनों भी इंसुलेटर्स हैं और दोनों का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगी ज्यादा. जैसे आपने कल देखो एग्जांपल देखा था ए, बी और सी में. ठीक है, एक एग्जांपल हमने कल लिया हुआ था. तो एक बॉडी जो है तो थोड़ा सा एनर्जी उसको मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और दूसरी बॉडी भाई साहब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं. चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन मतलब क्या है? कि एक चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, इसको भाई साहब मैंने ये न्यूट्रल बॉडी से जैसे टच करवाया तो इसमें चार्जेस फ्लो होंगे, तो ये हो गया चार्जेस बाय कंडक्शन. दोनों में ही भाई साहब टच हो रहा है, बॉडीज आर टचिंग ईच अदर. ये एक ऐसा चीज है जहां पे बॉडीज टच नहीं होगी, इंडक्शन से होगा. ठीक है, मतलब छूमंतर है ये. ठीक है, आपने भाई साहब एक बॉडी को इधर लाया, ये चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, और पास लाया और पास लाया और पास लाया, ये समझ लो पॉजिटिवली चार्ज है. तो अभी क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर इकट्ठा होने लगेंगे. ठीक है, आपने भाई साहब इसकी अर्थिंग करा दी और अर्थिंग करा के फट से छोड़ दिया, फिर से निकाल लिया, तो क्या होगा? इधर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा नीचे चला गया. तो अभी क्या हो जाएगा? अभी आप इसको ले जाओ, अभी ये पूरा बॉडी क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो गया. तो क्या आपने इस बॉडी के चार्जेस को इसमें ट्रांसफर किया है? नहीं. मैजिकल इफेक्ट है ये. ठीक है, इसको अपन बोलेंगे इंडक्शन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग: फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन. ओके, लेट्स लुक एट दिस पीपल. मेथड्स ऑफ चार्जिंग. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ग्लास रॉड है, इसको आपने भाई साहब किससे रूप किया? सिल्क क्लॉथ से. ठीक है, सो ग्लास रॉड को अगर आपने सिल्क क्लॉथ से रब किया, फ्रिक्शन के वजह से भाई साहब क्या हो जाएगा? ग्लास रॉड विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. फ्रिक्शन होगा भाई साहब, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा मतलब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, और ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो ये आपका हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्लियर? ओके, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा भाई साहब, और इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर्स नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपलम? पीपलम, ओ पीपलम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन. नाउ लेट्स लुक एट भाई साहब चार्जिंग बाय इंडक्शन. छू मंतर वाला है ये. ठीक है, जादुई चार्ज, विदाउट टचिंग भाई साहब चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे. तो लेट्स से दिस इज अ बॉल व्हिच हैज गॉट पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, नाउ व्हेन यू ब्रिंग अ न्यूट्रल बॉल टू इटसेल्फ, ठीक है, आप भाई साहब एक न्यूट्रल बॉल को इसके पास ला रहे हैं. When a charged object is brought close to a uncharged or neutral object, what will happen people? ठीक है, नेगेटिवली. अभी यहाँ पे जो यहाँ पे अंदर चार्ज तो है ना भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है, इसको पास ला रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स सब इधर आ जाएंगे और प्रोटॉन्स इधर रह जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज द चेंज दैट विल हैपन. नेगेटिव चार्जेस ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट साइड. तो नेगेटिव चार्जेस भाई साहब यहाँ पे इकट्ठा होने लगेंगे, और यहां पे भाई साहब क्या इकट्ठा होने लगेगा? पॉजिटिव चार्जेस. क्लियर है? बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इसके नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही इसके पॉजिटिव चार्जेस हैं. द बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल. ठीक है, सो नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यहां पे भाई साहब नेगेटिव, इधर 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 ध्यान देना, नेगेटिव चार्जेस बेसिकली गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, अभी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन. अभी अगर आपने क्या किया, यहां पे आपने अर्थिंग कर दी, अर्थिंग.
और अर्थिंग करके फट से बस ऐसे थोड़ा सा अर्थिंग क्या हटा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अर्थ में फ्लो हो जाएंगे, और जैसे ही अर्थ में फ्लो हो जाएंगे ये नेगेटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा। तो दिस इज हाउ चार्जिंग बाय इंडक्शन इज डन। सो नाउ दिस बॉडी बिकम्स प्राइमरली नेगेटिव चार्ज, इसी को अपन बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, चार्जिंग बाय कंडक्शन, अभी यहां पे आप क्या कर रहे हैं, व्हेन यहां पे टच करवा रहे हैं इस बॉडी को, इस चार्ज बॉडी को आप अनचार्ज बॉडी से टच करवा रहे हैं। तो कल हमने क्या देखा, जैसे ही आपका टचिंग होगा तो क्या होगा, ये पूरा चार्ज जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। अगर यहाँ पे 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है तो अभी दोनों का कितना कितना हो जाएगा, 5-5 का कूलम चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो द मोमेंट यू टच इट, चार्जेस फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट गेट्स इक्वली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अनचार्ज ऑब्जेक्ट एज इट इज टच्ड। तो ये वैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। Okay, when a glass rod is rubbed with silk, the glass rod loses electrons and the silk gains equal amount of electrons. This process is called charging by induction, charging by friction, charging by conduction, or charging by electricity. So this will be charging by friction. Okay. When a charged object is touched to an uncharged object, then charges from the charged object get equally distributed on the uncharged object. This process is known as charging by induction, charging by friction, charging by conduction, or charging by electricity. क्या हो जाएगा भाई साहब ये, this will be charging by conduction. Are we clear on this one people? ठीक है, this is charging by conduction. Okay, when a positively charged body is brought close to an uncharged body, negative charge of the uncharged body gets accumulated on the same side of the charged body. This process is called, क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है भाई, क्लोज क्लोज नॉट टचिंग, ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, सो दिस विल बी चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, थैंक यू हो गया रे, लेकिन तुम्हारा कहां हुआ? ओके, चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है। तो आपने देखा भाई साहब चार्जिंग बाय इंडक्शन एक होता है, दिस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दिस इज वैलिड फॉर इंसुलेटर्स, ठीक है। जब भी आप एक इंसुलेटर को दूसरे इंसुलेटर के साथ, उसको प्लग में लगा देगा क्या, नहीं वो बंद है आदित्य, उसको प्लग में लगा देना, ये वायर जो आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, इतना इंटेलिजेंट है तू, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, सपोज दैट देयर आर टू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट चार्ज एफिनिटी, तो चार्जिंग भाई साहब आपका ये हो गया क्या, ये दिस इज वैलिड फॉर इंसुलेटर्स। चार्जिंग बाय इंडक्शन इन दिस केस आपके भाई साहब दो चीजें हैं जिनको हम चार्ज कर रहे हैं, ये आपका देखिए पॉजिटिवली चार्ज सोर्स है ये, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब इधर इकट्ठा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठा हो गए, ठीक है। अभी पटक से आपने यहाँ पे अगर इसके साथ क्या कर दिया, इसके साथ भाई साहब हादसा कर दिया ये कि इसके साथ आपने कर दी अर्थिंग, ठीक है। तो जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप यहां पे लाएंगे, नेगेटिवली चार्ज इधर है, पट से ये पॉजिटिव, देखो ये अर्थिंग मतलब होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग? जो भी चीज है सब अर्थ में चला जाएगा, तो प्रोटॉन्स भी जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स भी जाएगा। नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कोई चार्ज बॉडी है, प्रोटॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स है, क्या दोनों भी जाएंगे? यस, दोनों भी जाएंगे, ठीक है। कोई भी चार्ज आपका भाई साहब अर्थ में जाएगा, इट विल शो अ टेंडेंसी टू गो इनटू अर्थ। देखो अगर मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूं, ठीक है, तो आपने देखा रहेगा इलेक्ट्रिशियंस को अलग से बूट दिया जाता है, ठीक है, उनके जो शूज होते हैं उनके सोल्स भाई साहब मोटे होते हैं, इसका मतलब समझते हैं आप, क्योंकि देखो ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है। द मोमेंट यू हैपन टू एक्सीडेंटली टच अ लाइव वायर, बहुत मतलब हो ही सकता है हर समय आप लाइव वायर से काम, मतलब वायर से काम कर रहे हैं, तो बहुत लाजमी है कि आप लाइव वायर को छू लें और शॉक लगे। तो जैसे ही आप लाइव वायर को छूते हैं, आपका बॉडी एक चैनल बन जाता है उन चार्जेस को अर्थ में जाने के लिए, ठीक है। और अगर इसका पाथ आप काट दें, अगर आप एक इंसुलेटिंग शू पहने, ठीक है, तो बजा मतलब
भाई जिस रास्ते से आगे हम जा ही नहीं सकते वहां हम क्यों जाएं, ठीक है, तो चार्जेस जाएंगे ही नहीं। दैट्स द रीजन यू विल नॉट रिसीव अ शॉक, ठीक है। इफ यू आर एन इलेक्ट्रिशियन यू आर सपोज टू वेयर शूज विथ हैव very high soles made up of any insulating material like rubber so that the charges do not take the root of your body to go inside the earth, ठीक है, ये हो गया। अगर समझो ये एक तार है बहुत हाई वोल्टेज का और कोई इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है और भाई साहब ये अचानक से ऐसे ऐसे लटक गया, will he die? No, he will not die, ठीक है। Till the time he is hanging on the wire, he is not going to die, ठीक है। The moment he touches the ground, he will die, ठीक है। अगर इसका भाई साहब कोई सीढ़ी से या कोई भी चीज से इसका ग्राउंड के साथ कनेक्शन हो जाता है, इट विल डाई। अरे भाई साहब तुम सुबह सुबह उठोगे, सबसे विचित्र प्राणी और सबसे मतलब बेकार प्राणी होता है कबूतर, ठीक है। मतलब क्यों आया इस जगत में मुझे नहीं मालूम, ठीक है। इनका भाई साहब एक ही काम है, एक बिल्डिंग से वो दूसरे बिल्डिंग तक, मतलब एक छत से दूसरे छत तक, पता नहीं ये बर्ड स्पीशी है क्यों, ठीक है। पहली बात तो ये है। खैर, तो ये कबूतरों को देखोगे तुम लाइव वायर्स के ऊपर, भाई साहब ये तो ऐसे बैठे रहते हैं ना, कुछ होता कोई है इनको, डू दे डाई? नो, दे डू नॉट डाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन अगर यही कबूतर जमीन के साथ कनेक्टेड हो जाए, इट विल डाई। समझ रहे हैं? कोई अगर आपका इलेक्ट्रिशियन है और बाई एक्सीडेंट भाई साहब कोई बड़े हाई वोल्टेज तार पे वो लटक जाता है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू हिम टिल द टाइम ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग टू टच विद द ग्राउंड, ठीक है। जैसे ग्राउंड के साथ टचिंग होगा तो क्या, देखो कैसा रूट है, देखो रूट कैसा है भाई। अगर आपके लिए सीधा रास्ता है और इस रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है तो क्या आप सर्विस रोड लेंगे? सर्विस रोड मतलब समझते हैं ना, ये जो हाईवे है देखो, आपका एनजीएम के साथ एक पैरेलल रोड चलता है और उधर भी भाई साहब अगर देखोगे कलमबुली के साथ भी एक पैरेलल रोड चलता है। दीज आर सर्विस रोड्स बेसिकली। मैकडोनल्ड के सामने जो रोड जा रहा है वो सर्विस रोड है, ठीक है। तो ये समझ लो हाईवे है, इसके साथ एक सर्विस रोड जा रहा है। ये सर्विस रोड जनरली कब होता है? जब आपके हाईवे में जाम वाम हो गया तो निकलेंगे कैसे, ठीक है। तो इसके लिए सर्विस रोड होता है भाई। अगर हाईवे में ट्रैफिक स्मूथली चल रही है, विल एनीबडी टेक द सर्विस रोड? नो। तो ऐसे ही भाई साहब यहाँ पे तार में इलेक्ट्रॉन भाई साहब फटाफट जा रहे हैं। वाई शुड द इलेक्ट्रॉन्स टेक द दिस हेल्प, ठीक है। वो उसकी बॉडी से क्यों जाएंगे? दे विल नॉट पास थ्रू, बट द मोमेंट ही गेट्स कनेक्टेड टू अर्थ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, ठीक है। दे विल गेट अ बॉडी, मतलब एक बॉडी से वो नीचे जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे देखो अर्थिंग होती है भाई साहब, आपके ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है भाई साहब। अगर चार्ज इस पे गिरा, चार्ज कैसे गिरता है समझ लो। ये भाई साहब आपका एक क्लाउड है, ये दूसरा क्लाउड है भाई साहब, दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ, चार्ज तैयार हुआ, ठीक है। चार्ज तैयार हुआ, अभी ये प्लस चार्ज है, ठीक है। अभी लेट से ये प्लस चार्ज ग्राउंड में जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ग्राउंड इसको खींचेगा, ठीक है। अर्थ जो है सारे चार्जेस को खींचता है, तो ये ग्राउंड अगर इसको खींचेगा तो इसको एक मीडियम चाहिए, जल्दी से जल्दी पहुंचे, और इसीलिए थंडर एंड लाइटनिंग होती है। मतलब चार्ज गिर रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, और अगर ग्राउंड में जाने से पहले इसको कोई ऐसा मीडियम मिल जाए जिससे ये जल्दी पहुंचे तो वो उसको ले लेगा, ठीक है। तो वो चाहे बिल्डिंग हो, चाहे इंसान हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे एनीथिंग, ठीक है। दैट्स व्हाट इट यूजेस। इसीलिए बिल्डिंग्स के ऊपर आप देखोगे ऐसे एक पॉइंटेड चीज रहती है, कंडक्टर, इसको अपन बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है। जैसे ही ये होगा, ये कंडक्टर है, तो चार्ज बिल्डिंग के ऊपर ना गिर के इसके ऊपर गिरेगा क्योंकि ये कंडक्टर है, इससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी अर्थ में पहुंचने की, तो ये भाई साहब सेफली इसको अर्थ तक पहुंचा देगा, तो इसका बिल्डिंग के ऊपर असर नहीं आएगा, ठीक है। ओके, आपने जितने भी स्विच पॉइंट्स देखे हैं जो हाई आउटपुट्स वाले हैं, जैसे आपका गीजर का हो गया या आपका भाई साहब एसी का हो गया, ठीक है, इन सब के भाई साहब 3 प्लग पॉइंट्स होते हैं, ऐसा होगा, है ना, ठीक है। अगर आप देखोगे टीवी 2 प्लग पॉइंट से चल जाता है, आपका कोई चार्जर 2 प्लग पॉइंट से चल जाता है, लेकिन इन सब के 3 प्लग पॉइंट्स क्यों होते हैं? एक तो भाई साहब एंट्री लेवल है, एक आपका एग्जिट लेवल है, लेकिन ये क्या काम करता है? ये बिल्डिंग के अर्थिंग से जुड़ा रहता है। मतलब क्या होता है, जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाए, ट्रैफिक कब ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट जब बढ़ेगा, जब कोई आप हाई आउटपुट का चीज ले रहे हैं, जैसे कोई आपका भाई साहब एसी हो गया या गीजर हो गया, जब आपने अचानक में इसका ट्रैफिक बढ़ा दिया तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और ये लाजमी है कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है इधर उधर हो, ठीक है, तो ये इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन अगर आपका अर्थिंग है तो ये ट्रैफिक भाई साहब, एक्स्ट्रा ट्रैफिक इस अर्थिंग से अर्थ में चला जाएगा विदाउट
कॉजिंग एनी एक्सीडेंटल मतलब चीज घर में हो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सर्विंग द पर्पस ऑफ अर्थिंग, ये आपका अर्थिंग का पर्पस को सर्व करता है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका भाई साहब चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन इज वेरिन यू डोंट टच द टू बॉडीज एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन इज वेरिन यू टच द टू बॉडीज। चार्जिंग बाय कंडक्शन में टोटल चार्ज दो बॉडीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में एनी क्वेश्चन सा? नो क्वेश्चन सा, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या हो गई बच्चा बॉडी, ठीक है। वन इज एडिटिविटी, चार्जेस कैन बी एडेड। व्हाट इज द अदर प्रॉपर्टी? क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू एनी, और कंजर्वेशन, चार्जेस आर गोइंग टू रिमेन कंजर्व। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, अभी देखो ये जो कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपके पास अभी फिलहाल कोर्स में नहीं है। द बेसिक कॉज क्वांटाइजेशन का क्या है भाई साहब? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ड्यूरिंग रबिंग ओनली एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वांटाइजेशन को ऐसे समझो कि हम बार बार क्वांटाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है भाई साहब रबिंग ऑफ टू सरफेसेस। तो रबिंग जब हो रहा है तो आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, है ना। चाहे 10 जावे, चाहे 12 जावे, चाहे 100 जावे, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन इधर रह गया, आधा इलेक्ट्रॉन गया। सो अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा सो वहीं से आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Ne ही होना है उसको, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is an experimentally verified law, and who were the two people who were involved in experimentally verifying it? It was Faraday and Millikan, ठीक है। Millikan का oil drop experiment that happened in 1912 and Faraday के experiment से ये quantization of electric charge को हम लाते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस कैसे इन्वॉल्व होते हैं बाय रबिंग, and when one body is rubbed over the other, one of them loses electrons and the other one happens to gain. And obviously we cannot divide an electron. An electron in whole and soul has to go there. So अगर इलेक्ट्रॉन आपके जा रहे हैं तो एक जाएगा, दो जाएगा, 10 जाएगा, 100 जाएगा. It has to be a quantized thing. ठीक है, क्लियर है, सिंपल। ओके ओके ओके, अभी बताओ भाई साहब ये होता क्यों है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थियोरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मैटर आपका एटम से बना हुआ है, ठीक है। An atom consists of a small central nucleus containing protons and neutrons around which revolve a number of electrons. In any piece of matter, the positive proton charges and the negative electron charges cancel each other. तो हर एक मैटर जो है न्यूट्रल होता है अपने आप में। न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्जेस नहीं है। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज द रीजन एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर शेल ऑफ एन एटम आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, जिसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। The energy required to move an electron from the surface of a material is known as work function. देखो होता क्या है समझ लो, ये कोई भी मटेरियल है, कंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इसके ऊपर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई साहब? मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब रिलीज होते हैं। और ये एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये इसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप इसको पढ़ चुके हैं और भी विस्तारित रूप से अभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। खैर यहां पे वर्क फंक्शन बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल इज नोन एज इट्स वर्क फंक्शन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लूजली बाउंड होते हैं, इनको बाहर खींचना आसान होता है। थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो बाहर खींचेंगे। जब आप फ्रिक्शन दे रहे हैं तो एनर्जी जा रही है, ये एनर्जी भाई साहब क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट करेगी। अगर फ्रिक्शन के टाइम पे आपका जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन को अचीव कर लेता है या वर्क फंक्शन से थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, ठीक है। सो व्हेन टू डिफरेंट बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मटेरियल विथ लोअर वर्क फंक्शन टू द मटेरियल विथ हायर वर्क फंक्शन। Higher work function means what? You require a higher amount of energy to pull the electrons. Lower work function means what? You require a lower amount of energy to pull the electrons. ठीक है? So material which has a higher work function will not lose the electrons, but material which has a lower work function will lose the electrons and become positively charged. ठीक है? Okay. For example, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, some electrons are transferred from the glass rod to silk. ठीक है? The glass rod develops a positive charge due to deficiency of electrons,
while the silk cloth develops an equal negative charge due to excess of electrons. Are we getting this people? हम तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये जो ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है और ये आपका सिल्क क्लॉथ है. दिस इज बेसिकली सिल्क क्लॉथ. व्हेन यू आर रबिंग दिस ग्लास रॉड विद सिल्क, द ग्लास रॉड इज बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज. अगर आपसे सवाल पूछा जाए किसका वर्क फंक्शन ज्यादा, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा. ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम होगा. इट रिक्वायर्स लेसर एनर्जी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज द रीजन इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ओके ओके. सो द कंबाइंड टोटल चार्जेस ऑफ द ग्लास एंड सिल्क रॉड इज स्टिल जीरो. ठीक है, बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग, by applying conservation of charge, still the total amount of charges would be zero. Electric origin of frictional forces. The only way by which an electron can be pulled away from an atom is to exert a strong electric force on it. ठीक है, as electrons are actually transferred from one body to another during rubbing, so frictional forces must have an electric origin. तो आपके जितने भी frictional forces होंगे भाई साहब, उनका सबका electric origin होगा. Are we clear to this one people? हम समझम. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अच्छा कुछ नहीं, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू कूलम. तो हमने भाई साहब यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? चार्ज एंड इट्स ओरिजिन पढ़ लिया भाई साहब. ठीक है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस भाई साहब, चार्ज एंड इट्स ओरिजिन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. फ्रिक्शन से भाई साहब आपका ओरिजिन होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी एंड कंजर्वेशन. मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, क्या क्या हो गया आपके? फ्रिक्शनल मेथड, देन आपका कंडक्शन एंड इंडक्शन. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर क्लियर टू अस नाउ. ओके, कूलम्स टॉर्सनल बैलेंस. नाउ वी विल स्टडी कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. ओके, तो अगर आप देखोगे भाई साहब कूलम के लॉ में क्या है, कूलम्स टॉर्शन बैलेंस. ठीक है, एंड कूलम्स लॉ. चार्ल्स Augustine D. Coulomb invented an instrument known as Coulomb's torsion balance. Using this instrument, he measured the charge of a body. ठीक है, कॉन्सेप्ट. तो टॉर्शन बैलेंस एक्सपेरिमेंट हेल्प टू मेजर वेरी स्मॉल. टॉर्शन मतलब क्या होता है? घूमना. ठीक है, एक टॉर्क से जो प्रोड्यूस होता है, तुम समझेंगे. ठीक है, द टॉर्शन बैलेंस एक्सपेरिमेंट हेल्प टू मेजर स्मॉल फोर्सेस. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ वायर और अ थ्रेड रेजिस्ट ट्विस्टिंग विद अ फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट. एक वायर है, उसको आपने भाई साहब घुमा के रख दिया है. ठीक है, अभी इसको जब आप ऐसे घुमाने की कोशिश करोगे तो वो रेजिस्ट करेगा उसको. ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन टॉर्शन. ठीक है, ओके. टॉर्शन बैलेंसेस आर यूज्ड टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस. मेथोडोलॉजी क्या है भाई साहब? टॉर्शन बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ग्लास केस. अ ग्लास ट्यूब इज अटैच्ड टू इट एंड द ट्यूब एंड्स विद अ पीस ऑफ अ मेटल. तो भाई साहब ट्यूब में भाई साहब ये टॉर्शन हेड है, ग्लास ट्यूब है एंड देयर इज अ पीस ऑफ अ मेटल. ठीक है, a torsion fiber, metal or thread runs through this metal that ends with a metal rod and at one end and a spear on the other. The ends of the metal rod are connected with two spears. तो metal rod का भाई साहब ऐसा, ये metal rod है, देखो ये metal rod गया और यहाँ पे दो spears हैं ऐसे. There are two spears out here. ठीक है, it can swing freely due to suspended state by the torsional string. तो भाई साहब टुरुंग ऐसे घूम सकता है ये. ठीक है, it can swing freely torsional string से. A scale encircling the glass case is shown in the figure. Another fixed spear is present in the glass case. तो एक और fixed spear है भाई साहब, यहाँ पे एक और spear है. देखो यहाँ पे दो spear तो है लेकिन एक और spear है. तो ये ग्लास ट्यूब है, ये टॉर्शन हेड है, दिस इज टॉर्शन फाइबर. ये सिलेंड्रिकल ग्लास केस है, ये आपका स्केल है. देखो ये स्केल है, दिस इज बेसिकली द स्केल, ग्लास के साथ ही है और ये लिड हो गया आपका. प्रोसीजर एंड वर्किंग. द फिक्स्ड स्पीयर, ये आपका फिक्स्ड स्पीयर है और ये आपका भाई साहब मूवेबल है. ठीक है, ये फोर्स है. The fixed spear and the spears connected with a straight rod which can swing are given the same nature of charge. तो इसको same nature of charge दिया गया है. ठीक है, thus they repel each other and start to rotate. तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? रिपेल करेंगे और रोटेट करना चालू कर देंगे. ठीक है, on rotating the torsional string gets twisted and the twisting shows reading on the force scale. तो यहाँ पे भाई साहब force scale है, ये जो घूमेगा तो इसमें रीडिंग बताएगा. ठीक है, hence we can measure the force exerted by one charge sphere on the other charge sphere. तो एक चार्ज स्फीयर से दूसरे चार्ज स्फीयर में कितना फोर्स है उसको अपन मेजर कर सकते हैं. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. सो ऐसा अगर हम एक्सपेरिमेंट करते रहे, देखो हमको क्या मिल रहा है. जैसे समझ लो ऐसे हम रीडिंग्स ले रहे हैं, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2. ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच में भाई साहब 4r का है. ठीक है, 4r मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे देखो ये एक स्पीयर हो गया, ये एक भाई साहब स्पीयर हो गया, ये एक भाई साहब स्पीयर हो गया. 2r इनके बीच में इतना डिस्टेंस है.
तो हम यहाँ पे अगर ऐसा 4r का डिस्टेंस ले रहे हैं और चार्जेस की वैल्यूज को चेंज करते जा रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है भाई साहब, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, तो हम फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं Q1 Q2। अगर हमने डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया तो हमको दिख रहा है, तो हमारा जो कूलम्स लॉ है वो इन 3 लॉ से बना हुआ है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भाई साहब आपका फोर्स जो आपका हो सकता है अट्रैक्टिव, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, value of one charge, this force against is directly proportional to Q2, ठीक है, and this force is inversely proportional to the square of the distance between the charges। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारा कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, वेयर K इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दिस इज बेसिकली कूलम्स लॉ, ये आपका कूलम्स लॉ। सो द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of the charges, is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges। तो यहाँ पे समझ लो एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे समझ लो दूसरा चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच में लेट्स से डिस्टेंस आपका R है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, क्लियर है? दैट इज कूलम्स लॉ, दैट इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ, ठीक है। Okay, so from the table we can observe that the magnitude of force acting on the charge is proportional to the magnitude of the product of the charges Q1 and Q2. Also, the force is inversely proportional to the square of the distance between the charges. If 2 point charges are present at a distance r from each other, then by Coulomb's law, the force is given by force is directly proportional to Q1 Q2 by R का square, where force can be stated to be K Q1 Q2 by R का square, where K is equal to 1/4 pi epsilon naught। Clear है? Okay, okay। So आपका K का वैल्यू इसको याद रखिए भाई साहब, K की वैल्यू होगी 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको भाई साहब देखो यूनिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। मुझे बताओ इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन, ये हो गया आपका K, ठीक है, और यहां पे हो गया कूलम स्क्वायर, और ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर इधर गया अपॉन कूलम स्क्वायर। तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सिंपल, ठीक है, 9 into ये आपका यूनिट आ रहा है, अगर इन केस यू फॉरगेट एज टू वेयर द यूनिट इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। सो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है भाई साहब, इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वी नो दैट इफ द फर्स्ट चार्ज अप्लाइज एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज, ठीक है, F21, द सेकंड चार्ज अप्लाइज एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज। तो आप समझ लो फोर्स ऑन चार्ज 2/1 F12 लिखा हमने, फोर्स ऑन चार्ज 1/2 F21 हो जाएगा। बोथ विल बी इक्वल, बोथ दीज फोर्सेस विल बी इक्वल। कैसे, अगर आप देखोगे F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। और अगर आप देखोगे F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, सेम, ठीक है। सो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। F1 and F21 are equal in magnitude but opposite in direction, ठीक है। An experiment is done in which there are two charge bodies, one is fixed and the other is brought near to it, ठीक है। If the charges are separated by distance 4r, then the force is F. When we bring the charge from 4r to 2r, then by applying Coulomb's law, the force is 4F, ठीक है। इस तरह से भाई साहब आपको दिख रहा है, जैसे जैसे तो सिमिलरली when the charge is brought to a distance, इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे आपने किसको प्लॉट किया हुआ है, डिस्टेंस को, यहाँ पे आपने किसको प्लॉट किया भाई साहब, फोर्स को। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और रादर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर,
ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, ठीक है पीपल, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।